Welcome to Tracing Waters. This is a storytelling session on water that will cover five stories by five people from five places. I'm Meghna Dayanand, Managing Editor at India Water Portal, English website. For those of you who may not be familiar with us, India Water Portal is an online knowledge platform that brings together articles, research, and insights on all things water. We publish in both English and Hindi, and today's session will also move between the two languages. I'm joined today by my co host and colleague Ajay Mohan, managing editor of our Hindi website. Also, today is World Water Day. Let's take a moment to pause and reflect on water and its significance in our lives. In that spirit, we bring to you five stories from across the country. Over the past year, through our regional storytelling fellowship effort, we have worked with five individuals who have followed quieter water journeys across India, telling stories that often don't make the headlines. Today, they will share one story each from their respective regions. But before that, I would like to thank Arghyam and Tata Trusts for making this fellowship possible. And I'd like to invite Priya Shankar from Arghyam to share a few words about the initiative. Over to you, Priya. Thanks, Meghna. India Water Portal is a free, open platform where practitioners and experts contribute stories on water. It has more than 26,000 articles, videos, and content pieces and continues to be a trusted source of information on water for 2 decades. Last year, we started the Regional Storytelling Fellowship as a conscious effort to bring storytellers, journalists, and creators to bring fresh perspectives on water from places that are usually not covered. The fellowship is a 6-month program that offers three things: mentorship by experts in water, journalism, and research, editorial support, and a platform to publish and amplify their stories. I want to take a moment to acknowledge our many mentors who graciously gave their time to share their knowledge and wisdom. Our very first cohort has five people: Vanchika Singh from Telangana, Neetu Singh from Uttar Pradesh, Thomas Malsam from Tripura, Brajendra Dubey from Uttar Pradesh, and Wahid Bhatt from Jammu and Kashmir. You will listen to them today. We also have an exhibition of their stories coming up on the 29th of March in Bangalore International Center. Those of you who have joined us from Bangalore, come visit us and meet them in person. I have to say, this fellowship has been thoroughly enriching and a lot of fun to all of us at India Water Portal. I once again welcome you all. Thank you so much, Priya. Over to you, Ajay. नमस्कार दोस्तों, विश्व जल दिवस पर आपका स्वागत है। और इस सेशन में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पांच कहानियां हम आपके सामने लेकर आए हैं वो इंडिया वाटर पोर्टल की फेलोशिप के दौरान कवर की गई ग्राउंड स्टोरीज हैं। और इन ग्राउंड स्टोरीज के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पानी लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। आज की तीन कहानियां इंग्लिश में होंगी और दो हिंदी में। तो मेघना, हमें लगता है कि पहले इस सेशन पर का जो फॉर्मेट है उसके बारे में बताने की जरूरत है। Ji Zarur. So today we have five storytellers and five stories. Each story will be shared through a 7 to 8 minute presentation. We'll be taking questions towards the end of the session as well. In the meantime, you're welcome to type out your questions in the Q&A box with your names and to whom you want to ask the questions for. The fellows may also respond to some of your questions during the session itself. On that note, let us begin the storytelling session with our first speaker, Vanchika Singh. Trained as a researcher and also an evocative writer, Vanchika brings us a story from the urban quarters of Hyderabad on how young people navigate risk and repairs in cities. Over to you, Vanchika.
Thank you, Meghna. Thank you for that generous introduction. And thank you, everyone, for making it this morning for our storytelling session. I will just share my screen. So, broadly, my storytelling landscape has moved between Maharashtra. My first story was from Maharashtra, where I was tracing untimely rains in the month of May and how that altered the relationship between farmers and traders, particularly flower traders and farmers through one particular flower market. That's Asia's largest flower market in Bombay. I moved to Haryana to cover stories, particularly in the context of technology change and how that's shaping how farmers themselves interpret their worlds. But my favorite story, and I know favorite is subjective, but the story that I want to share with everyone today is the story of a plumber from the city of Hyderabad. And I know it's the story of one plumber, but as we realize, this is a person without whom our lives in cities are incomplete and almost unimaginable. So I was interested in the logics by which plumbers work in our cities. How do they imagine their worlds? When they enter the world of pipes, pipelines, buildings, what are they thinking? What do they evaluate as risky? What do they think as possibility? तो मेरी कहानी जो शुरू होती है वो हैदराबाद के एक मोहल्ले में शुरू होती है जिसका नाम है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कॉम्प्लेक्स, जो कि साउथ ईस्ट हैदराबाद में पड़ता है। सिंगरेनी कॉलोनी इसका नाम है। ये जगह 2005 में बनाई गई थी आफ्टर अ फायर आउटब्रेक टू काइंड ऑफ रिहैबिलिटेट पीपल हु वर अदरवाइज लिविंग इन सेल्फ बिल्ट होम्स। तो कहानी यहाँ से भी शुरू होती है कि मेरा बचपना खुद एक गवर्नमेंट बिल्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहा था। अलग गवर्नमेंट बिल्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो कि एशियन गेम्स के बाद दिल्ली में बनाई गई थी, एक डीडीए कॉलोनी थी। तो शायद पता नहीं क्या बचपन का कीड़ा या मलाल था कि जब मैं यहाँ पर पहुंची तो जाहिर सी बात थी कि मेरा मन था कि यहाँ की जिंदगी जरा बेहतर समझी जाए, जो शायद मुझे मेरे खुद के सफर के बारे में सोचने पे भी मजबूर कर दे। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो सरता विहार से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि एक वर्टिकल हाउसिंग में रहना ना कि शहरी होने का सबूत होने लग गया है, लेकिन व्हेन यू लिव इन अ वर्टिकल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यू नो यू आर कॉन्स्टेंटली वॉच्ड, and making it to the rooftops or the terrace is seen as a rites of passage of arrival, that finally the world that you're being watched from, you're also able to get to the top of it. तो जब मैं वैम्बे कॉम्प्लेक्स पहुंची थी तो यहाँ पर भी मैं सीधा रूफ टॉप्स पे पहुंची। तो यहाँ देखा गया कि 2016 में the municipal corporation decided to remove storage tanks that were built on the rooftops because ये खाली हैदराबाद के वैम्बे कॉम्प्लेक्स की कहानी नहीं है, ये बॉम्बे के रिसेटलमेंट हाउसिंग की भी कहानी है, ये बैंगलोर में बनाए गए कुछ घरों की कहानी भी है कि ज्यादातर जो हम अर्बन पुअर के लिए घर बना देते हैं वो क्वालिटेटिवली बहुत वीक होते हैं, स्ट्रक्चरली हम उन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। और 2005 में ये घर बनाए गए थे और 2016 में ही जो स्ट्रक्चरल वीकनेस थी वो इस हद तक आ गई थी दैट द कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स डिसाइडेड दैट यहाँ के जो स्टोरेज टैंक्स हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, अदरवाइज द बिल्डिंग्स विल नॉट बी एबल टू टेक द वेट एंड आर लाइकली टू कोलैप्स अर्लियर। अब क्या होता है जब एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा जो रोजमर्रा का एक स्टोरेज टैंक होता है, जब वो आपके घर के ऊपर से हटा दिया जाता है, व्हेन यू रिमूव दैट, what happens is that your last mile water supply is entirely your responsibility. That's something that you need to tether through wires. And if you see the image on the top, you will see what these rooftops look like. They look like a labyrinth of pipes from where water flows inside individual tenements. ये बताना जरूरी है that there are about 64 blocks in this housing complex, and each block has 2 further blocks. So a total of about 1,100 families live across these 64 blocks, and on almost every floor there are about 8 tenements, 1 room tenements that are packed together. तो उन सब का पानी इस वक्त इन पाइप्स के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है, और वक्त जो है वो पानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। और ऐसा नहीं है कि और मोहल्लों में जो हॉरिजॉन्टल स्लम्स होते हैं वहां पे पानी वक्त के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, लेकिन जब आप वर्टिकली मूव इन कर दिए गए होते हैं और पानी जो है बहाना होता है,
तो फिर वो दीवारों के थ्रू सीपन होते हुए ही नीचे पहुंचता है। तो एक जो चीज जो मैंने इस कहानी के जरिए सीखी, जो हम अपने शहरों में शायद ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो है डैम्पनेस की। नमी इतनी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और चाहे यहाँ के जो डेली वेज वर्कर्स है वो गांव जाए या काम करने जाए, आपके घर का पंखा हर वक्त चलना चाहिए, नहीं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। नमी की एक बू भी होती है, एक सुगंध भी होती है, और साथ में एक रहने का एक्सपीरियंस भी होता है, जिसकी वजह से आपको अपने इर्द गिर्द पंखे चलाने पड़ते हैं हर वक्त, चाहे बेशक बाहर से आवाजें आ रही हो या कुछ भी आ रहा हो, घर की खिड़कियां खुली रखनी पड़ती हैं। उस तरह से एक स्टोरेज टैंक हटाने की वजह से आपकी पूरी जिंदगी रीऑर्गेनाइज होती है। तो मेरी दिलचस्पी थी कि इस माहौल को जीने लायक आखिर कौन बना रहा है। तो चलते फिरते मैंने देखा कि ये प्लमर का नंबर जो है, दैट वाज पेपर्ड अक्रॉस द वॉल्स इन दिस पर्टिकुलर रिसेटलमेंट रिहैबिलिटेटेड कॉलोनी। और जब पहली बारी मैंने ये नंबर लगाया तो खालिद करके एक प्लमर है, ही पिक्ड अप द फोन एंड जाहिर से उनका सवाल था कि क्या रिपेयर करने की ज़रूरत है। और जब मैंने उन्हें बोला कि मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहती हूँ, तो वो शायद थोड़े दंग रह गए थे, और शायद थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि कोई मुझसे बात ही खाली क्यों करना चाहता है, बता नहीं रहा है कि क्या रिपेयर करना है, क्या पाइप लगानी है, क्या प्लम्बिंग करनी है। तो ये आई थिंक ये रिसर्च में या राइटिंग में या स्टोरी टेलिंग में ये रिलेशनशिप्स ओवर टाइम बनते हैं। तो धीरे धीरे जब बात होना शुरू हुई तो मैंने भी खालिद से पूछा कि आप बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं सिंगरेनी कॉलोनी में क्या कर रही हूँ। तो बातचीत से ही आई लर्नड दैट कोई भी प्लम्बर एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस से काम नहीं करता है, एक बहुत ही डीप रूटेड सेंस ऑफ प्रोग्रेशन है काम का, दैट ड्राइव्स देयर वर्क। एंड दैट इज हुनर, काबिलियत एंड आजमाइश, जो कि हम गिग वर्कर्स या जो हम अर्बन कंपनी में प्लम्बर्स देख रहे हैं, या जो प्लम्बर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स यानी राजन्ना के साथ काम करते हैं, उस वक्त को प्लम्बर्स हुनर लेना समझते हैं। दैट इज देयर लर्निंग टू रिफाइन देयर क्राफ्ट ऑफ वर्किंग ऑन द पाइप्स। Literally, the work they use is karigari. And then slowly, when someone like Khalid gets the ability to write his name on the walls with a number, that's a stage that's associated with काबिलियत, कि मैं इतनी क्षमता रखता हूँ कि मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम सुलझा लूंगा। आजमाइश तब आती है जब आप औरों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, जो कि खालिद ने सिंगरेनी कॉलोनी में करना शुरू किया था। इन छोटे स्टोरेज टैंक्स को लेके, जो कि हमारे शहरों में हर जगह मिलते हैं, उन्होंने एक साइज से उन्हें कट करना शुरू किया जो कि सिंगरेनी कॉलोनी में फिट हो जाए, ताकि लोग किसी तरह से अपना पानी संभाल ले। बड़े टैंक्स नहीं रख सकते हैं तो क्या वो छोटे टैंक्स अपने छोटे छोटे घरों में फिट कर दे, जिससे पानी जरा सा काबू में आ जाए। तो जिस मुकाम पे मैं खालिद से मिली थी, वो आजमाइश की तरफ बढ़ रहे थे। और ये हुनर, काबिलियत और आजमाइश की कहानी है कि वो किस तरह से शहर में रहना सीखते हैं और शहर में काम करना सीखते हैं। मेघना, आप ये जानती हैं कि खालिद अब हमारे साथ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द स्टोरी, खालिद पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। और मुझे जो पहले ये बताया गया था, ये कॉल मुझे चार आर्टिजन्स जो कानपुर से हैदराबाद शिफ्ट हुए थे उन्होंने बताया था, जिन्होंने एक टेनेमेंट किराए पे लिया था और उनके घरों में खालिद ने एक टैंक फिट किया था और उनके थ्रू कॉल आया था। तो क्योंकि हम स्टोरीज और स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे एडिटर्स का, मेघना एंड अदिति, जिन्होंने इस बारीकी को समझा और जिन्होंने बहुत सेंसिटिवली इस कहानी को अप्रोच करने दिया मुझे। और एक जो प्रोवोकेशन है, फटाफट में खालिद की कहानी से यही कहना चाहूंगी कि हमारे शहर में बहुत सारे खालिद हैं, जो इस शहर को अपने तरीके से बेहतर करना चाह रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की तरफ भागने से पहले या किसी और मॉडल की तरफ भागने से पहले, खालिद की अगर कहानी है तो वो मुझे तो यही सिखा कर गई है कि जो हमारे शहर में ऑलरेडी है इतनी सारी पोटेंशियल, जगहों को, उनकी बारीकियों को कायदे से समझने की, अगर हम उस पे अपनी नफ्स कायम करें और उसके साथ समझकर आगे बढ़े, तो शहर में पानी
और उससे कुछ बेहतर करने की क्षमता ऑटोमेटिकली हमें नजर आएगी. I leave that and I leave you with a map Khalid drew of what he identifies as risk in the Vamber housing complex on the left, which tells me that someone like Khalid had the breadth to understand issues in a connected sense. And I hope that's the imagination we can carry at the grassroots to the policy level. Thank you, Meghna. थैंक यू सो मच वंशिका। इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी प्रभावशाली कहानी आपने हमारे साथ शेयर करी। तो निज़ामों के शहर हैदराबाद से अब हम रुख करते हैं नवाबों के शहर लखनऊ की ओर। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं नीतू सिंह। नीतू सिंह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। नीतू ने कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी खबरें लिखी हैं, बहुत सारी ग्राउंड स्टोरीज की हैं और साथ ही साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों को काफ़ी करीबी से टच किया है। तो नीतू, आप जो स्टोरी हमारे सामने लेकर आ रही हैं उसके लिए मंच अब आपका है। शुक्रिया अजय जी। आप सभी को नमस्ते। आज जो मैं कहानी आपके साथ साझा करने वाली हूँ, ये कहानी हमारे काफ़ी करीब है, हमारे दिल के काफ़ी करीब है। ये कहानी यूपी के कानपुर देहात ज़िले की है। कानपुर नगर में जहाँ पे गंगा नदी बहती है, कानपुर देहात के बाद के जो ज़िले हैं वहाँ पे चंबल नदी बहती है। पर ये कहानी कानपुर नगर और चंबल नदी के बीच के ज़िले की कहानी है, जो कानपुर देहात में आता है। यहाँ पे कोई नदी नहीं बहती है और जिस ज़िले में नदी नहीं बहती है वहाँ पानी का मुख्य सोर्स कुएं और तालाब हुआ करते हैं। तो हमारी कहानी का शीर्षक है कि यूपी में किस तरह से तेजी से तालाब और कुएं गुम हुए हैं, उसके पीछे की कहानी है। कानपुर सॉरी देहात नीतू, हमारा आपकी स्क्रीन जो है विजिबल नहीं है, एक बार जरा चेक करेंगे हम। एक अभी दिखाई पड़ रहा है सर? एकदम परफेक्ट परफेक्ट, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये जैसा कि हमने आपको बताया कि कानपुर देहात में कोई नदी नहीं है और जिन जिलों से नदी नहीं बहती है उन जिलों में जो पानी का सोर्स है वो कुआं होते हैं, कुआं और तालाब होते हैं। तो ये कहानी वहीं से है। हमने पानी से जुड़ी इस फेलोशिप के दौरान कई कहानियों को बहुत करीब से किया है, पर इस कहानी के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। एक ज़रूरी विषय के साथ हमारा रिश्ता इसलिए भी है क्योंकि जिस कुएं को आप देख रहे हैं तस्वीर में, इस कुएं में हमारी ग्रैंड मदर ने, हमारी माँ ने और हमने खुद पानी भरा है। कभी हम इस कुएं पे खेले हैं। पर आज भी आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे बकरियां बंधी हैं, सन्नाटा पसरा है और ऐसा लग रहा है कि शायद कभी यहाँ पे भीड़ नहीं होती थी। पर एक समय था जब ये जगह बहुत ही गुलजार हुआ करती थी। पर समय के साथ सिर्फ कानपुर देहात में नहीं, यूपी के जितने भी जिले हैं वहाँ पे कुएं और तालाब बहुत तेजी के साथ गुम हुए हैं। हम कह सकते हैं खत्म होने की कगार पे हैं। तो सिर्फ पानी के सोर्स सिर्फ कुएं और तालाब नहीं खत्म हुए। कुएं और तालाब के खत्म होने से जो इनके साथ हमारी संस्कृति जुड़ी थी, जो इनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा था, जो हमारी परंपराएं थी, वो भी खत्म हुई। जो कुएं और तालाब पे कभी भीड़ रहा करती थी वो खंडहर में तब्दील हुए। जो वाटर बॉडीज बची हुई हैं वो वहाँ पे भी सन्नाटा पसरा है। मतलब वो कहने को तो है पर वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। और जो तालाब भी बचे हैं वो उसको डंपिंग यार्ड जैसा बन गया है, तो वहाँ पे कूड़ा भरा रहता है। तो एक समय था कि लोग पीने के पानी के लिए कुएं का इस्तेमाल करते थे और जानवरों को पिलाने के लिए या कपड़े धुलने के लिए तालाब के पानी का इस्तेमाल करते थे। सिंचाई के लिए तालाब का इस्तेमाल करते थे। खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल करते थे या फिर तालाबों का करते थे। पर अभी चीजें बहुत बदल गई हैं। अभी ये स्थितियां नहीं रही हैं कि लोग कुएं और तालाब का इस्तेमाल कर पाए पीने के पानी के लिए। तो इन जगहों से बहुत खास रिश्ता हर उम्र के लोगों का रहा है। लोग ऐसा कहते थे, मैंने भी बचपन में काफी सुना है कि इन कुओं पे लोगों का प्रेम परवान चढ़ता था, सहेलियों की दोस्ती गहरी होती थी, शादी रिश्ते तय होते थे और परिवार के जो लड़ाई झगड़े होते थे कई बार इस कुएं की बैठकी पे खत्म होते थे।
खासकर जो नई बहुएँ जब आती थी ससुराल, तो सबसे पहली जो विज़िट होती थी घर में प्रवेश करने से पहले वो कुएँ और तालाबों की होती थी। और वो इसलिए भी होती थी कि उनको ये बताया जाता था, क्योंकि आपको पता है कि पानी के साथ महिलाओं पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। घर में पानी भरना है या पानी से जुड़ा जो भी काम है, तो ज़्यादातर पानी भरती आपको महिलाएँ दिखेंगी। तो इसलिए शायद महिलाओं को कुएँ और तालाबों से परिचय कराया जाता था कि आने वाले सालों में या आने वाली ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा तुम्हारा कुएँ और तालाबों पे बीतेगा, तो तुम्हारा इसके साथ एक जान-पहचान हो जाए, इसके साथ आप बैठ सकें। ये तस्वीर में सुप्यारी देवी दिख रही हैं। इन्होंने हमें बताया कि इनकी पहली दोस्त ससुराल में कुएँ पे एक सहेली बनी थी और उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता था। ये याद करती हैं उन दिनों को कि जब मुझे घर से बाहर नहीं निकलने की आज़ादी थी। तब हम इंतज़ार करते थे सुबह और शाम का कि हम कुएँ पे जाएँगे और अपनी सहेली से अपने मन की बात कहेंगे। तो शायद मन की बात कहने का भी एक ठिकाना था। पर अभी वो चीज़ें नहीं बची हैं। अभी लोगों के साथ जो बातचीत, जो दूरियाँ हैं, तो सिर्फ़ पानी नहीं ख़त्म हुआ, तो लोगों के बीच जो रिश्तों में जो सिकुड़न आ गई है, वो भी शायद देखने को मिलती है। ये कुआँ जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे प्रमोद जी खड़े हैं, प्रमोद ने बताया कि इस कुएँ पे बैठ के पूरे गाँव के झगड़े सुलझाए जाते थे एक समय। और यहाँ पे लोगों के शादी रिश्ते भी तय होते थे और किसी को कोई समस्या होती थी, तो लोग इस कुएँ के पास आते थे। पर अभी उनके घर के बाहर का कुआँ है। अमूमन लोगों के घर के बाहर एक मोहल्ले में 1 या 2 कुएँ होते थे। हमारे मोहल्ले में 2 कुएँ थे, जो दोनों सूखे पड़ गए हैं। ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कानपुर देहात के डाढ़ापुर गाँव की हैं। डाढ़ापुर गाँव में एक समय 13 कुएँ थे, 7 तालाब थे। वर्तमान समय में एक भी कुएँ में पानी नहीं है और जो 7 तालाब हैं, उसमें से सिर्फ़ 1 तालाब में थोड़ा-सा पानी है, बाकी तालाब कूड़े का ढेर बन चुके हैं। तो कैसे मतलब जो कुएँ दरवाज़े पे हैं, उस पे लोग त्योहारों पे पुताई तो कर लेते हैं ताकि ये बना रहे, लेकिन अभी इसके साथ जो कल्चरल था कि शादी के बाद जब लड़का बारात लेके जाता है, तो माँ उनकी कुएँ में पैर डाल के बैठती थी कि अब तो तुम पराया हो जाएगा, मेरी देख-रेख नहीं करेगा। तो बेटा कुएँ के पास खड़े होके प्रॉमिस करता था कि नहीं माँ, मैं आपकी देख-रेख करूँगा। तो ये परंपरा तो अभी चल रही है, लेकिन पानी नहीं है, तो लोग पानी घर से लेके जाते हैं, सिर्फ़ इस रिवाज को चलाने के लिए। हमारे कानपुर देहात में एक परंपरा ये भी है कि जब किसी महिला के बेटा या बेटी होती है, तो वो कुएँ पे 1 महीने के बाद घाट पूजन जाते हैं। तो लोग पहले पानी को पूजनीय स्थल मानते थे, क्योंकि पानी एक ज़रूरत का हिस्सा है और इसको पूजा की तरह देखते थे और पूजा जहाँ पे करते थे, इसलिए उसकी मरम्मत करते थे, देख-रेख करते थे। पर अभी ऐसा नहीं है। जो पानी के सोर्सेज़ हैं, जैसे हर घर जल योजना, उसके लिए नल लग गया है कानपुर देहात के बहुत सारे गाँव में, या हम कह सकते हैं यूपी नहीं, देश के कई हिस्सों में हर घर जल योजना के तहत नल लग गया है, पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। वो सिर्फ़ नाम का नल लगा दिया गया है। जो हैंडपंप है वो उसमें पानी है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, तो 1 बाल्टी पानी भरने में आपकी साँस फूल जाएगी, आप नहीं निकाल पाएँगे। और तालाबों की स्थिति आपको पता है कि अभी कैसी हो गई है। आपको पता है कि अब यूपी में, खासकर अगर हम यूपी की बात करें, तो पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड का जो इलाका है, वहाँ पे पानी की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है और पिछले 75 सालों में पानी का दोहन 70% से ज़्यादा हुआ है। जो इस समय आधुनिकीकरण के चक्कर में ट्यूबवेल, बोरवेल और सबमर्सिबल लगाए जा रहे हैं, इससे भूजल स्तर बहुत तेज़ी के साथ घट रहा है। इसकी मानगी वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ की एक रिपोर्ट में देखने को मिलता है। अ, इस रिपोर्ट के अनुसार 75 सालों में बहुत तेजी के साथ 70% से ज़्यादा पानी का दोहन हुआ है। जो प्रति व्यक्ति पहले पानी की उपलब्धता 1951 में 1951 में जो 5177 थी, वो अब 2025 में 3141 बची है, यानी 74% से कम लोगों को अब पानी मिल पा रहा है। पानी 74% से ज़्यादा ड्रॉप आउट हो चुका है, तो लोगों पे जो प्रति वक्त पानी की उपलब्धता है, वो भी काफ़ी कम हुई है। एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं जो बांदा में रहते हैं, आशीष सागर जी उनका नाम है। उन्होंने एक आरटीआई रिपोर्ट लगाई थी, जिसमें उन्होंने पाया कि बुंदेलखंड इलाका 4020 जो वाटर बॉडीज हैं, उनका उनका दोहन हुआ है, मतलब वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो ये एक चिंता की बात है कि कैसे तेजी के साथ पानी खत्म हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस प्रयास में आगे नहीं आए हैं, कुछ हैं जो लोग आगे आए हैं और वो अपनी-अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। एक युवा है रामवीर तंवर जो गाज़ियाबाद में रहते हैं, उन्होंने बीते कुछ सालों से पानी पे काफ़ी काम किया है, खासकर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी काम किया है। जो तालाब पूरी तरह से कूड़ा घर बन चुके हैं या डंपिंग यार्ड बन चुके हैं, लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो समुदाय के सहयोग से, जन सहभागिता से, पंचायत के सहयोग से उसको मिल के साफ करवाते हैं और उसको पुनर्जीवित करते हैं। अब तक वो 40 से ज़्यादा तालाबों को साफ कर चुके हैं। कुछ और युवा हैं जो अपने-अपने स्तर पे, पंचायत स्तर पे तालाबों को साफ कर रहे हैं। अ, तस्वीर में ये सुदामा प्रसाद अकेला जी हैं, ये कानपुर देहात के रहने वाले हैं। इन्होंने बोला कि मैं 85 साल का हूँ और मैंने कुएँ खोदते हुए अपनी आँखों से देखा और कुओं को खत्म होते हुए अपनी आँखों से देखा। और अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात कहना ये है कि अगर इन कुओं को या तालाबों को पुनर्जीवित भी किया जाए, तो खासकर कुओं को पुनर्जीवित करने में एक चैलेंज ये भी है कि अभी मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। कुएँ की खुदाई करने वाले मज़दूर भी विलुप्त हो गए हैं, तो अगर कुओं को पुनर्जीवित किया जाए, तो कौन करेगा? क्या वो मशीन कुओं को पुनर्जीवित कर पाएँगे? क्या ये संभव है? या फिर मज़दूरों को क्या फिर से ट्रेनिंग दी जाए? क्योंकि पहले तो कुएँ ही सोर्स हुआ करते थे। अभी वो पानी से जुड़े बहुत सारे लोकगीत लिखते हैं पानी के कुएँ और तालाब होने की परंपराओं को लेके और जो ये कुएँ और तालाब खत्म हुए हैं, उसका भविष्य क्या है आने वाले दिनों में? और पंचायतों में जाके, अलाव पे बैठ के जहाँ भी उनको मौका मिलता है पेड़ की छाँव में वो लोगों को लोकगीत सुनाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमें कुओं को पुनर्जीवित करना है, तालाबों को पुनर्जीवित करना है। कितना भी समरसेबिल लग जाए लेकिन हमें एक ना एक दिन पानी को संरक्षित करना ही पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी भी कुछ कुएँ बचे हैं जिस पे लोग पानी भर रहे हैं। कुएँ पे पानी भरने की बहुत सारी खूबियों के बीच एक दुश्वारी ये भी है कि यहाँ पे जाति का एंगल बहुत देखने को मिलता है। तो जाति पानी की जो व्यवस्था है उसको और गहरा कर देता है। पानी की जो उपलब्धता है उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा है कि जाति कैसे असर डालती है पानी भरने को लेके। ये तस्वीर पंजाब की है और बाकी की तस्वीरें जो महिलाएं रो रही हैं ये पंजाब की है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट की है तो सतलुज और रावी नदी में जो पिछले साल बाढ़ आई थी अगस्त और सितंबर के बीच में तो वहाँ पे बाढ़ के बाद किसानों की खेती पे क्या असर पड़ा है क्या प्रभाव पड़ा है और बाढ़ के बाद क्या वो अपनी बुआई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हमने इसको एक लेके रिपोर्ट की थी तो किसानों का कितना गहरा असर पड़ा खासकर महिलाओं का तो और जो कोसी नदी की ये तस्वीर है, कोसी नदी की ज़्यादातर महिलाओं का जीवन इस नाव के सहारे चलता है। नाव अगर इनको बाज़ार जाना है, अस्पताल जाना है या इन्हें कहीं भी जाना है, तो इनका नाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है नदी को पार करने का और ये इसके साथ बहुत अभी फ़ैमिलियर हो गए हैं। तो हम एक गाँव में गए थे जहाँ पे करीब कोसी नदी को पार करके हम 1 डेढ़ घंटे पैदल चले तब हम उस गाँव में पहुँचे। ये वहाँ की तस्वीर है कि वो नदी पार करके ही जाते हैं। तो बस ये कहानी को करने के लिए मुझे काफ़ी समय मिला और इस कहानी को मैं काफ़ी वक्त से करना चाहती थी और मैंने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट इस पे की गुम होते तालाबों और कुओं पे तो अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं पूरा तो इंडिया वाटर पोर्टल के उस पर पढ़ सकते हैं शुक्रिया इंडिया वाटर पोर्टल की पूरी टीम का कि मुझे मेरी सबसे दिल के करीब कहने की कहानी को जो आज़ादी मिली जिस तरीके से हम कहना चाहते थे जो एंगल डालना चाहते थे हमें वो सब मौका मिला उसके लिए बहुत शुक्रिया Dhanyabad Neetu. Thank you for that moving and thought provoking story. It makes us pause and think about our own cities, where water bodies are shrinking, and perhaps more importantly, how our relationship with water is changing, something that was once woven into our culture and history. Coming up next is a unique story from the Northeast, a story of a submerged valley in Tripura known as the Dambur Island. Joining us is Thomas Malson, a researcher who brings this story from his home state. Thomas, over to you. Thank you so much. May I have my slide, please? Slides. Lisa? Lisa, can you share?
Yeah, thank you so much. I'm happy that today I'll be sharing one of such story that I wrote, and I've been planning to write for this story for quite a long time. So what I will try is that I will try to take you to to a place, to a lake that looks like almost you can say a postcard, but holds submerged past, yet it remain unheard or like untold kind of a water story. And this is a story about, Adumbur Lake in India from my hometown. Lisa, can you go to next slide? What drew me actually to write about this lake started with a simple curiosity, actually. It was somewhere in 2022 or 2023 when I kept seeing the viral images of this Dumbur Lake, where, the blue waters and the scattered green islands almost look like a coastal landscape. And it's spread across 41 square kilometers of blue water dotted with 48 green islets, Dumbur Lake, which is also popularly known as a coconut island or like Narikal Kunju in Tripura right now. And then I remember asking myself that how can a hilly state like Tripura have an island? So it piqued my curiosity, and I began asking questions only to discover that this was not a natural lake. It was once a tribal, we call it a Raima Valley, a fertile landscape where once a communities lived, farmed, and built their lives for many generations. And this valley was celebrated as Tripura's granary. And over time, this entire valley was submerged. Lisa, if you can go to next slide. This entire valley was submerged due to a hydropower project that never came to life. In 1974, the Gumti hydroelectric project dammed the Gomati River, which then hailed as a milestone of modernization after Tripura's merger with the India, and it promises electricity but instead submerged an entire valley and displaced thousands of lives, rendering them homeless. At that moment, the perception of the island changed for me from a beautiful place into a layered story that I chose to write about. In fact, this story, Lisa, if you can go next. In fact, this story of Dumbur Dam was not entirely new to me because I've been hearing, about this Dumbur Dam from my childhood, especially in conversations about how tribals became marginalized in Tripura. Then it became my personal sort of agenda to learn about it, to write about it. So I began to realize that the Dumbur is not just a place, but it is also deeply connected to memory and identity of the tribal communities in Tripura. There is even a folklore of Raima Saima, which narrates about how the Raima, the elder sister who merges into a Gumati river in grief after her relationship with non-human species was not accepted by her family. So here, water is not just geography; it carries history, emotions, and belonging, and the very origin of the place history. And before submergence, the valley tribe, many tribal communities, especially the Riang, who are also the PVGT communities, the tribe in the valley, they practice both settled farming and jhum cultivations. It was abandoned not just economically, but also culturally. But when the land disappeared, the farming vanished with it. Yeah, if you can go to next slide. This means the landscape did not remain same, anymore. People who had cultivated field for generations were forced to move and adapt. Then fishing became their survival, not by choice, especially for those who chose to live by the banks of Dumbur Lake. Thus, farmers became fishermen, while thousands of families migrated to many other places. During my field work, when I spoke to, the Pancham Mohan, he told me that how elephants and police were used to demolish homes while evacuating their village. He said, "We watched our homes collapse and could do nothing." I remember standing by the lake with a man, as you can see in the picture. His name is Cairo. So he pointed to the water and said, "This is where my land was." In that moment, the lake changed for me. What I saw as a water or maybe a beautiful lake, but for him, it was a memory, it was a home, and it was also a loss. And more importantly, if you go to next place, more importantly, even after the dam, are submerged, people living nearby the lake are still suffering. For example, one fisherman told me that there's water everywhere, but fish are not like before. That line stayed with me, and the lake looks abandoned,
well, plenty of kind of resources, but it does not sustain people equally. So the lake that looks abandoned or like, very plenty, it's not always sustaining them. And I continue listening, and I realize the displacement here also not just about losing, but also kind of a movement that how people, trying to kind of live with the new way of living. But if you can go to next. But the shift was especially hard for especially women, as you can see here the pictures. The entire families are going for fishing because now especially the women's, it's very hard for them losing both their livelihood and stability. Their work change and their uncertainty remain. So here, fishing may have replaced farming, but it is still unstable livelihood, fluctuating reservoir levels, seasonal scarcity, and it disrupted breeding cycles mean, it means stocks are very much vary widely. So this is also the place now it has been used for as a Gomti reservoir. One supported a very rich diversity for different fisheries, but overfishing and reduced stocking have led to a serious decline, leaving the livelihood of the fisher folk hanging by the line and mostly dependent on seasonal tourist income, which is barely enough for sustenance. Like having spoken to Kanchan Mohan, a local fisherman, he said the government charges us for licenses, but fixed prices are so low that we barely recover cost, and middlemen make the more profit than not us. So if you go can go to next. So this is where the story takes a kind of a different turn. Like today, Dumbur, as a tourist destination, it is very much promoted, and many people goes to place, but then many people are not aware, or like many people may be much aware of the history of this place, and this creates a kind of very stark contrast where the place of loss becomes a place of leisure, and a submerged history becomes kind of a scenic image or a beauty. So the landscape exists differently for each person. It is not only a tourist postcard, but it is, for me, it is a wound for and a forced adaptation where survival depends on uncertain fish stocks and seasonal visitors. So I was, having a kind of a different thinkings about, of this place. And one thought that keeps coming, which is, I think, pretty much normal for maybe many, many of us, that what kind of development it is that displaces thousands, that displaces thousands of people, and then again forces the displaced peoples to adapt to a kind of uncertain living. And what was promised, it's more like a failure. And then again, it continues to be repeated the same place because now uh, a good number of civil societies also talks about decommissioning of this, but then again, on the other side, there's also a discussion for reviving to to bring the what was intended for this this place. So for me, this Dumbur, it is not just a lake; it is a story of transformation, of land becoming a water, and of farmers becoming a fisher, and of how the memory becoming a landscape. So this story, it also kind of changed the way I reported. It taught me to listen and to hold beauty and the loss together, and how I also try to connect with the kind of the very epistemology, the very origin history of this place, and with the kind of the development policies and the lived experiences of struggle by the communities, and how combining all of these stories into one narrative. And I'm very much thankful for India Water Fellowship for this because I could write this story, I could bring out this which is not very much unheard actually. In fact, in Northeast India, if you look at many stories, the very voices of this kind of the places are still remain unheard, and many stories are still lie beneath the surface actually, just like the how the fertile land is submerged completely under this dam water. So, with this, I will end my presentation and thank you so much. थैंक यू थॉमस। तो दोस्तों, आपने त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र से आने वाली इस स्टोरी को देखा, और अब हम जो अगली स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस स्टोरी की तरफ, वह स्टोरी लाने वाले खुद आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। तो हम इससे पहले उनसे मिले, आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है और या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो Q&A सेक्शन में आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की ओर, जहां से ब्रजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र,
एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया है और कई अखबारों और मैगजीन्स के लिए ये ग्राउंड स्टोरीज कवर करते हैं। तो ब्रिजेंद्र, आप ये मंच आपका है। जी नमस्कार। मेरा नाम ब्रिजेंद्र दुबे है और मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मड़िहान आदिवासी इलाके से आता हूँ। और मैं आपको आज बलुआ पत्थर, जो कि गुलाबी पत्थर है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं मिर्जापुर का नाम आप तो लोगों ने सुना होगा कि मिर्जापुर की एक वेब सीरीज आई थी। लेकिन मिर्जापुर की वेब सीरीज तो अलग है, लेकिन उससे बड़ा है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खनिज जिला है, जो कि यहाँ से विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। और गुलाबी पत्थर जो कि जीआई टैग प्राप्त है। पहले यहाँ के जो पत्थर थे, यहाँ के पत्थर यहाँ के पत्थर संसद भवन अयोध्या और पुराने जो राजा थे वो अपने किलों में लगाने के लिए यहाँ से पत्थरों को मंगाते थे। जो कि गुलाबी पत्थर है, पत्थरों का दिन रात यहाँ पर पत्थर निकाले जाते हैं। ये मिर्जापुर का जिला है और जो पत्थरों की पहचान है आज वही संकट में है। समस्या कहाँ से शुरू हुई? जो मिर्जापुर का इलाका है वो विंध्य की पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ पर अनेक तरीकों के खनिज पाए जाते हैं, जो कि कभी सफेद पत्थर तो कभी गुलाबी पत्थर। लेकिन हम बात कर रहे हैं गुलाबी पत्थर की। समस्याएं कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पत्थरों को अनियंत्रित तरीके से दिन रात माइनिंग करके उसको निकाला जा रहा है। वहां पर पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की जा रही है और विस्फोटकों से पहाड़ों को उड़ाया जा रहा है। हम तो बात कर रहे हैं ऊपरी सतह की, जो पहाड़ों से पहाड़ों पर विस्फोटक बिछा करके और फिर उनको उड़ाया जा रहा है, जिससे पत्थर तोड़ सके। बड़े बड़े खनिज व्यवसायी हैं जो कि दिन रात माइनिंग करते हैं और पत्थरों को उड़ाने का काम करते हैं। बात पत्थरों के उड़ाने की नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मिर्जापुर का जो जिला है, ये केवल और केवल खनन और परिवहन के लिए जाना जाता है। और जो पत्थर हैं वो जो तोड़े जाते हैं उनके बीच से जो पानी का स्रोत होता है, जब ऊपर ब्लास्टिंग होती है तो नीचे जो पानी का स्रोत होता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्यूफर भी कहते हैं और हिंदी में जल स्रोत भी कहते हैं, वो टूट जाते हैं। और जो खनन एरिया है उस खनन एरिया में ही पानी को जमा होने देते हैं और फिर पानी को बाहर भी निकाल करके और बर्बाद किया जाता है। तो भूजल को एक तरीके से नष्ट किया जा रहा है, जो कि हमारे आने वाले समय में ये एक अदृश्य संकट पानी के लिए खड़ा होगा। पानी का जो अदृश्य आपदा है वो यहाँ के मिर्जापुर के सभी कुएं लगभग लगभग गर्मियों में सूख जाते हैं। हैंडपंप भी सूख जाते हैं और बोरवेल 300 से 6 फीट तक अगर हम बोरिंग कराते हैं फिर भी पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। पानी नहीं मिल पाता। टैंक जो बोरिंग होता है वो बिल्कुल और बिल्कुल खाली हो जाता है, सब धुएं की तरह उड़ जाता है। उसमें पानी का नामो निशान मिर्जापुर में नहीं मिल पाता। एक गांव है लहुरियादह, जहां पर लोग आजादी के 70 साल तक टैंकरों पर निर्भर थे। उन गांव के लोगों को केवल 5 लीटर का पानी मिलता था, 15 लीटर का पानी मिलता था और वो अपना 15 लीटर के पानी में उनका नहाना खाना सारा चीज डिपेंड था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने काफी स्टोरी किया उसके लिए, तो यहाँ पर एक जिलाधिकारी आई थी, तो उन्होंने वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया। वो लोग आज वहां पर पानी पहुंचा है। दूसरे गांवों से जो बात करें, यहाँ पर जो खनन एरिया है वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, उनका सेहत कैसा है। तो यहाँ पर जो ब्लास्टिंग होती है वो ऊपरी सतह पर होती है, लेकिन जो उसके कण टूटते हैं, जो पत्थरों के कण टूटते हैं, जो रेत है और जो माइनिंग का जो धूल है, वो उड़ करके यहाँ के आसपास के गांवों में लोगों के सेहत पर फर्क डाल रहा है, उनके फेफड़ों में जाकर जम रहा है। और उसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सोनपुर जहाँ की मैं स्टोरी ये किया हूँ, वो सोनपुर का अरौरा के तरफ सोनपुर गांव है। वहां पर एक नेशनल एथलीट है के एम चंदा।
वो इन्हीं सोनपुर गांव में पूरा पहाड़ी एरिया है, उसी पहाड़ पर वो खेली हैं, वो दौड़ी हैं, वहां से सीख करके और फिर आज नेशनल लेवल की एथलीट बनी है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि उनके पिता आज पहले टीबी के मरीज थे, फिर अब उनका टीबी किसी तरीके से ठीक हुआ तो अब वो दमा के मरीज हो गए हैं। तो हमारे लिए ये ये एक परिवार की बात नहीं है। पिछले 5 वर्षों में मेरा खुद का आरटीआई डाला हुआ आंकड़ा है, पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर कुल टीबी के 24,000 से ज्यादा मरीज आए और पिछले 5 वर्षों में लगभग 636 मरीजों की टीबी से मौत हो गई, जो कि ये सोचने वाली बात है। और जो के एम चंदा की माँ है वो अपने जमीन को बेच करके अपने के एम चंदा के पिता की दवाई भी कराई है। नेक्स्ट स्लाइड। हम बात करें गुलाबी पत्थरों की, तो गुलाबी पत्थर अपने मिर्जापुर के अलावा दुनिया में कहीं ये जो जीआई टैग पत्थर है ये दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं मिल सकता। लेकिन खेती और आजीविका पर जो असर डाल रहा है, उसके जो धूल के कण हैं वो जाकर के जब ब्लास्टिंग होता है, जो उसका धूल का कण है वो जाकर के खेतों में जमा हो जाता है। जब खेतों में जमा हो जाता है तो जो पानी का बारिश के समय पर जो खेती होती है वो उसके अंदर पानी नहीं जा पाता, पूरे खेत में नमी नहीं दे पाता। इस तरीके से जो सिल्ट है वो खेतों में जमा हो जाता है और धीरे धीरे करके उस खेत को बंजर का रूप दे देता है, कि जो कि कभी उस पर कुछ पैदा भी नहीं हो पाता। ऐसा ग्रामीणों का भी कहना है कि हम लोगों के खेतों में जो पानी बह करके आता है वो काफी नुकसानदेह पानी होता है, जिसकी वजह से हमारे खेतों को भी नुकसान हो रहा है। और जंगलों को भी जब माइनिंग करेंगे तो जंगल में ही करेंगे, और जंगलों को काट करके और फिर उसके बाद वो लोग माइनिंग करते हैं, इसलिए ये खनन का जो एरिया है वो जंगलों को भी काफी प्रभावित कर रहा है। अगर जो एक्वीफर्स जो टूटते हैं, जो खदान में 60 मीटर 70 मीटर का जो एरिया है, वो जहां पर पानी जमा होता है, उस पानी को निकालने के लिए जो एक्वीफर्स का पानी है, जो कि जल स्रोत, जो कि हम लोगों के घर में जो पानी ग्राउंड वाटर के जरिए हम लोग लेते हैं, उस पानी को लगातार यहाँ पर पत्थरों को निकालने के चक्कर में तोड़ा जाता है और काफी बर्बाद किया जाता है उस पानी को। पंप, बड़े बड़े पंपिंग सेट लगाकर उस पानी को बाहर निकालकर दिन रात माइनिंग और खनन का काम ही किया जा रहा है। पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की जा रही है और बिना परमिट के। और हमारा जब हमने स्टोरी किया तो उस स्टोरी पर काफी सरकार ने भी संज्ञान लिया और गैर कानूनी ढंग से जो पत्थर का कटान करने वाले थे उनकी धरपकड़ की गई और पेनाल्टी लगाई गई। और बिना परमिट के चलने वाले प्रेशर प्लांट भी बंद कराए गए, उनका सामान भी जब्त किया गया। लोगों को नोटिस भी दिया गया है कि पर्यावरण के नियमों का पालन करें। यही मेरी स्टोरी थी और हमें इंडिया वाटर पोर्टल का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमको ये कहानी में सारे एंगल डालने के लिए कोई मना नहीं किया गया और हमने काफी फ्री तरीके से हमने स्टोरी किया और हमने पूरी मिर्जापुर की कहानी जो है उसमें हम डाल दिए हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो उसको पढ़ने के लिए आप इंडिया वाटर पोर्टल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। धन्यवाद। Dhanyavad Brijendra. Thank you for that powerful story from Mirzapur. I'm sure many of our listeners now see Mirzapur beyond that popular culture, beyond what the popular culture shows us. To all of our audience, here is a reminder to drop your questions in the Q&A box with your name and the speaker you want to address. On that note, our final speaker and the last story for today is by Wahid Bhatt. Wahid is a journalist from Jammu and Kashmir who writes extensively on environmental issues, with a particular focus on extreme weather events. Let's now travel to the beautiful state of Jammu and Kashmir as Wahid shares his story, looking at his home through the lens of water. Wahid, over to you. Thank you so much, Meghna, for this beautiful introduction. And I'm from a very small village called Chevan in district Gandarbal of Kashmir. I bring this story, which is I feel like 25 minutes from my hometown in particular, and of course,
My story was about springs. Some of you might have joined from Kashmir. They can relate with this story of springs and sorry. So yeah, my story particularly some of you might relate as well. As a child, I didn't directly from natural springs. Being in the village, you get the cold, clear, and safe water. You feel you need water, you go to the spring and drink it. And today, many like springs, which we locally call them nag. It's a local term in Kashmir. Nag to refer these springs have dried up or turned polluted, and of course, like childrens no longer see water rising from earth, and that was a kind of beautiful thing happening beginning of they don't see it. And this logs inspired me to write first story for India Water Portal. And of course, as a journalist and Kashmiri as well, I believe these stories must travel far, for springs to flow again. And of course, this is not something which I feel we should have talked about. This is really important. I mean, I travel across the region, like speaking to communities, who are depend on the spring water for generations, and to understand what losing these springs truly mean. I mean, I as an individual have seen these springs, getting vanished, and now I was trying to understand how communities are affected with this. And of course, I mean, I particularly went to Ganderbal. Some of you might know, like Ganderbal is known for its, dense forests, glaciers, and of course, it was also known for its springs at some point. I mean, unfortunately, we don't have much springs left in the district. Where I met this person, Muhammad Sultan. He is actually a delivery labor, and he's also a shepherd. Who took me to his village, known as Hayan, a small village in the Tahsil of Kangan. His village once had, serving spring. There was around 7 to 8 springs, and that spring was in each and every village. And today there is only one single spring, which serve 8 villages, 7 to 8 villages, and rest have completely dried up. एंड ही वाज लाइक पॉइंटिंग में कि वो देख लीजिए, वो पहाड़ी पे जो है वहां पे जंगल के पास स्प्रिंग्स हुआ करती थी. नाउ देयर इज कम्प्लीटली ड्राई एंड क्रैक्ड लैंड, कुछ नहीं था वहां पे. So I was, kind of curious to understand like their feelings, how they see it as of now. I mean, he was, while having conversation, he was trying to say कि, springs जो है वो हर साल समर में पूरे साल चलते थे, बीट विंटर समर स्प्रिंग और ऑटम सीजन ऑफ कश्मीर. बट अब ये हो गया कि ये जो समर सीजन होता है दे एंड अप बिकॉज अभी समर में खत्म हो रहे हैं. Now we have to travel at least 2 kilometers, 2 kilometers to get water, and they are not sure. They are not 100% sure कि ये कितना pure होगा. They have to boil it and then they drink it. They can't, directly go and, pick a glass of water and drink. जो हम बचपन में किया करते थे, which he also used to do in his childhood. So he can't do it now. So similarly, in Gandarbal, of course, there is this one area which is known as Naranag. Nara is of course a place. There, there is this ancient temple which is Nara, and Nag, which we call spring. And it was like kind of they used to have a lot of springs, and of course the 50% of natural springs in this area have completely dried up. And this is really an important water source for people in this village, and of course for 300 villages across the region who were depend on these springs. And this particular area, some of you might know about Gangbal Lake, and of course an ancient temple, and Harmukh Mountain, which is in this Naranag area. And this place was quite famous for tourists and trackers most of the time. And this woman you can see she's 61 years old right now, and her name is Kharshi. And she was talking to me about her village, how in her childhood she used to drink water from these springs. Now she have to travel to get the water, and where she is staying you can see there is this water, and this water comes from Gangbal Lake now.
from the upper region, so they have to get water from this area, ताकि वो लोग पानी जो है लेके जा सकते हैं. एंड पिछले 20 सालों से व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर कि वहाँ पे सारे स्प्रिंग जो है दे कम्प्लीटली ड्राइड अप. और वहाँ पे जो औरतें हैं दे यूज्ड टू कम ट्वाइस जब स्प्रिंग्स हुआ करते थे, जस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैव कन्वर्सेशन विद ईच अदर, बातें करना. दे गेट द चांस टू डिस्कस थिंग्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. नाउ थिंग्स हैव चेंज. She, like, when I was talking to her, she was like really curious कि अब ये हो गया कि we have to go all alone. If she call a woman from her neighborhood कि पानी के लिए जाते हैं, she might be busy, कि उसके पास उस वक्त टाइम नहीं है कि वो इतना दूर जाके पानी ला सकें. So she have to go all alone to bring water. So वो एक चीज़ जो है कि वो ख़त्म हो गई है. They got the opportunity कि वो एक दूसरे के साथ मिल के एक साथ सोशलाइज होके दोबारा से पुराने ज़माने में जैसे वो पानी लिया करते थे वैसे प्रोसेस शुरू करें. And of course, during this whole process, I mean, I was trying to figure out कि क्या किया जा सकता है. Like, is there someone who is doing something? So one day I learned, like, one of the person who is working with the communities in Srinagar to revive these lakes and springs, of course. And I was curious, to be honest, and set off to meet Mr. Manzoor Wangno. And Manzoor Wangno is an environment activist and a well-known businessman in Kashmir. So upon meeting him, I learned that he has been able to revive 13 springs and lake in region. And he's right now working on Khushal Sar Lake, which is in the downtown of Srinagar. And while having conversation with him, he discussed with me about the mission Asas, through which he have done all this work. And of course, Manzoor is doing all this. There is also other options, which is of course a raw for people in the region, like Thousand Springs Initiative, which is of course of Ministry of Tribal Affairs. And of course, there are other initiatives as well, like Mission Amrit Sarovar and Green India Mission. And Jammu Kashmir Tourism have also some initiatives to revive these springs. You might have seen, like, जो tourism के लिए कश्मीर आते हैं, just to get the opportunity to visit Kashmir. There is one place, Chashma Shahi, in Kashmir. Chashma Shahi is very famous, like Gulmarg is Sonmarg. जो भी tourist आता है, they prefer to go there. There is lot of springs actually. So government have taken up some initiatives कि वो वहाँ पे जाके उन springs को revive करें. And of course, during this whole process, I was like trying to figure out कि क्या क्या हो रहा है. And this give me a hope actually कि community actions and sustained effort can from the government as well can bring these springs back to life. And जो future generation है, those who have not seen these springs, उनके लिए at least हम ये experience छोड़ सकते हैं कि yes, this is the actual traditional and pure way of water which we use during our whole life. And yeah. And now this is about the past story and present situation. पहले क्या हुआ करता था कि when springs used to flow, जो औरतें हैं they come together and twice a day they get the opportunity हंसना खेलना discussing everything together. And जो वहाँ पे बच्चे हैं they used to play and they used to drink directly water from the springs. And now things have changed. You see, like, आज क्या हो रहा है, they have to go all alone with limited resources for water as well. और बच्चों को नहीं पता कि ये पानी आता कहाँ से है. They have not seen these springs कि इस तरीके की कोई चीज़ exist करती है. And बहुत सारे reasons हैं. I mean, if you look at the regions as well, like the climate change in the region, for example, Kashmir Valley as well, we have seen 1980 0.8 degree. थोड़ा छोटा सा नंबर लग रहा है 0.8, but it have a huge impact on the region. हमारे जो ग्लेशियर है they have melt around 15% in last 20 years. और हमारा जो डेफिशिएंसी है बारिश की वो कम हो रही है हर साल, which eventually reduce recharge, drying these springs earlier. वो चीज़ हो रही है. And mining is of course a major concern in the region as well, क्योंकि mining activities की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा problems होती हैं. उस वजह से हमारे जो springs है they dried up fast. And during this whole process, कुछ चीज़ें हैं which didn't make actually in my article. And क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो dry springs हैं, this is also my personal experience, because पानी का sound जो होता है that actually make us feel very calm.
अब वो है नहीं, क्योंकि ज़मीन जो है वो क्रैक है, एंड देयर वर सम प्लेसेस जहाँ पे पानी आ रहा था। ये जो है यू कैन सी दी इन दिस इमेज, यहाँ से पानी फ्लो किया करता था। नाउ देयर इज नथिंग लाइक दैट। अब औरतें जो है वो खाली अकेले जाती हैं पानी के लिए, और बच्चों ने नहीं देखा है ये सारी चीज़ें, दे वर नॉट एबल टू सी ऑल दिस। और जो गांव हैं, जिन गांव में बहुत सारे स्प्रिंग्स हुआ करते थे, अब वहां पे कोई स्प्रिंग नहीं बचा है, या एक स्प्रिंग बचा है, जिस वजह से बहुत सारे गांव जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट सिंगल स्प्रिंग। और ये खासतौर पे पानी की ही बात नहीं है इसमें चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, बिकॉज जम्मू कश्मीर इज मोस्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। हमारा खाना, हमारा लाइवलीहुड, रिलेशनशिप, डिग्निटी, होप, सारा जो है वो इस पानी पे डिपेंड करता है। And we have seen this completely, getting vanished too fast. Or during this whole process, I mean, this journey changed me as a journalist, as a Kashmiri, of course, as a person as well. I mean, ये चीज़ मैं समझ पाया, लाइक कितनी फास्ट हमारे जो वाटर बॉडीज है वो ख़त्म हो रही है। एंड मोहम्मद सुल्तान, द पर्सन विच आई हैव सीन इन माय प्रीवियस स्लाइड, उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, दे वर नॉट एबल टू सी ऑल दिस। सो आई अंडरस्टैंड कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी, दे माइट नॉट बी एबल टू सी और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग। और स्प्रिंग जो है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वाटर, ये एक कम्युनिटी गैदरिंग हुआ करती थी। ऑफ कोर्स ये इसकी वजह से ये हो गया कि सोशल डिसअपियरेंस ख़त्म हो गई है। एंड वी नीड टू फिगर इट आउट, लाइक डेटा स्केल जो शो कर रही है, विच ऑफ कोर्स टेल्स लॉट ऑफ स्टोरी अबाउट पीपल एज वेल। बट ऑफ कोर्स देयर इज होप राइट नाउ। जो लोग हैं, they come together, they make sure कि हम efforts लें, and we keep things go ahead, और हम इसको बचाने के प्रयास करें। And like the Manzoor and of course the local communities in different parts of Kashmir Valley, they come together and they are trying to revive these springs, ताकि हम इन springs को दोबारा से लेके जा सकते हैं। And there is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो सरकारी काम के जरिए भी यू कैन सी कि ये जो है 2021-22 में इस ब्लॉक में स्प्रिंग जो है वो रिवाइव किया गया है, और ये चीज़ें हो रही हैं। सो वी हैव दिस होप कि शायद हम इस चीज़ को दोबारा से वापस बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच IWP की टीम को मेरी तरफ से। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू राइट डाउन दिस स्टोरी एंड शेयर दिस स्टोरी पर्टिकुलरली, जो मेरे लिए बहुत महत्व रखती थी एज अ पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ इंडिविजुअल, कि मैं लोगों को ये बता सकता हूँ कि जो स्प्रिंग हमारे हैं वो कैसे डिसअपेयर हो रहे हैं, एंड वो इट्स इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट कश्मीर, इट्स अबाउट होल वर्ल्ड एंड इंडिया ऑफ कोर्स, कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए हम पानी को लेके प्रयास करें, एंड वी सेव दीज वाटर बॉडीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, Wahid, for telling us about a story that's so close to your heart, and also a story that most of us may have been unaware of until now. That brings us almost to the end of this session. We will now take the next 10 minutes to go through some of the questions that we've received from you. Some of the questions have already been answered by the storytellers on the chat. Please do refer. Apart from that, we have a question. However, there is, okay, we can take the first question. This question is for Vanshika. So, Vanshika, this is a question. As a writer, what can be done better in telling stories about urban spaces and the people working on urban water security infrastructure, like Khalid, especially when these systems receive so little attention in mainstream and given how India is increasingly growing urban? Vanshika, over to you. Thanks, Meghna. Thanks for this question. And thank you for having posed this question. I think first thing that I feel very strongly about, and I think that's what Khalid's story allowed me to do, is I think the moment we think urban, we assume infrastructure, and that completely eliminates the doers of infrastructure. So I think the first agenda, if I may call it, or a storytelling framework that I may call it, that is required is to kind of capture the operating worlds of people who are already acting on cities, working through cities.
and to capture their lives. For instance, this was Khalid in a housing complex set up by the government, but within Hyderabad, right? If I go northwest, which is seen as the new Hyderabad, the Cyberabad, and the high-tech cities, where you have a very different kind of a living environment, a built environment today, the story of the plumbers would be very, very different. Their operating worlds would be very different. Their briefs would be very different. So I feel, firstly, what's important to capture is people who are already acting on the cities and the ways they act on the cities, the moral universe that they carry with themselves, like Hunar, Kabiliyat, and Azmaish. Who knew, right, that a plumber is not working in abstraction, but his actions are very well situated in a sense of progression of their own lives. And how they see themselves in the cities, and I think that's the nerve in terms of capturing people who do the repair work already. I think if we know that, then automatically I think our policy prescription would change, right? We would be able to think that how is it that we craft urban, what do you call, employment guarantee act, for instance, that makes use of the workforce that you already have in the city in line with the way they imagine their lives. And I think that kind of work is important. And I think storytelling in terms of narratives is one way to do it, but also to do storytelling in terms of data, right? How many people enter something like Urban Company at what stage in their lives? At what stage do they want to become independent plumbers? At what stage do they want to, they want certain ITI skills that gives them a stronger footing in the city? I think that kind of a data work also helps. And I think my broad provocation from this is just this, that how do we strengthen what we already have instead of thinking that we need to go after something that we don't. I थैंक think यू our वंशिका। people would be our strength. थैंक यू वंशिका, आपने बहुत सहज रूप से इस सवाल का उत्तर दिया। अगला सवाल पंकज कुमार का है, जो ब्रिजेंद्र से पूछना चाहते हैं। ब्रिजेंद्र, ये सवाल आपके लिए है कि पत्थर खनन का जो कारण है वो उसके कारण जो मिट्टी आती है और जो पानी, और उसके बाद जो मिट्टी के साथ जो धूल आ रही है वो पूरी तरह से पानी में जम जा रहा है, तो उसकी वजह से किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो अब इसके लिए ऐसा ही सेम जो मंजर है वो वाट जो विद्युत संयंत्र होते हैं, पावर प्लांट्स, वहां भी देखने को मिलता है। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? किसानों को और कौन कौन से विकल्प ऐसे हैं जिनसे पानी पहुंचाया जा रहा है किसानों तक? ब्रिजेन। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और किसानों की खेती को बचाने के लिए जो पावर प्लांट हैं या फिर जो माइनिंग एरिया है, उस तरफ अगर जो पानी का बहाव है उसका मतलब कि जो डीप होल हो रहा है, जो 10 मीटर का मानक है, उसको सरकार को पूरा कराना चाहिए, ना कि 70 से 60 फीट तक, 60 फीट तक नीचे खुदाई करने के लिए उनको परमिशन देना चाहिए। जब नीचे खुदाई नहीं होगा, केवल 10 मीटर तक जो उनका मानक है, 10 मीटर तक अगर खनन एरिया में काम करते हैं तो वहां से पानी निकलने के चांसेस कम रहेंगे। जो एक्वीफर्स हैं वो टूट नहीं पाएंगे। और जब टूटेंगे नहीं तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, और पानी इकट्ठा नहीं होगा तो वो किसी दूसरे के खेत में छोड़ेंगे नहीं। और जो खनन एरिया है उसकी बाउंड्री है, पर्यावरण की गाइडलाइन है कि चारों तरफ पेड़ लगाया जाए, पानी का छिड़काव कराया जाए। इन सब गाइडलाइन का पूरी तरीके से जब पालन होने लगेगा तो जो किसान है वो प्रभावित नहीं होंगे, ना किसी का खेत बर्बाद होगा, ना किसी के खेत में जाकर सिल्ट जमा होगी, जिसकी वजह से किसानों की खेत बंजर न होने पाए। तो सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए और गाइडलाइन के जो पर्यावरण की गाइडलाइन है उसको पूरा कराना चाहिए। धन्यवाद ब्रिजेंद्र। और हमने देखे कि जितने भी प्रश्न हमारे पास आए उनमें से कई के जवाब हम लोगों ने डायरेक्ट मैसेज पर हमारे फेलोज ने दे दिए हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने हमें प्रशंसा से भरे मैसेजेस इस वेबिनार में किए हैं। और आई होप आपको ये स्टोरीज पसंद आई होंगी। और एक चीज़ जो इन कहानियों में दिखती है वो यह है कि पानी की कहानी हर जगह होती है।
इट डिपेंड्स कि आपका लेंस कैसा है, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर लेंस। सो हम उसे कैसे देखते हैं। और इस फेलोशिप ने मुझे उम्मीद है कि ये जो लेंस है वो इस फेलोशिप के दौरान हमारे फेलोज को मिला। और बहुत जल्द हम फेलोशिप के अगले बैच के साथ आने वाले हैं। और बहुत जल्द हम फेलोशिप के अगले जो हमारे फेलोज हैं उनका वेलकम भी करने वाले हैं। और जो आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में इस यात्रा को जारी रखने में हमारा साथ देंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू इंडिया वाटर पोर्टल फॉर द नेक्स्ट फेलोशिप कॉल, जो कि जून से स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप भी अपने क्षेत्र की कहानियों को सामने ला सकते हैं और कुछ चेंज ला सकते हैं, तो आपको इस फेलोशिप में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप आगे की जो स्टोरीज हैं वो आपको और ज़्यादा आकर्षित करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि जो अच्छी स्टोरीज हैं, ये अच्छी स्टोरी सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो उनके करीब रहते हैं। Thank you, Ajay. Due to time constraints, we will have to conclude this session. Rest of you can send your questions to contact@indiawaterportal.org, and our fellows will reply to them for you. As we end our session today, I'd like to give a big shout out to the team who made this possible. Lisa for the webinar support on Zoom, Sharath for social media, our in house editors, Aarti, Amita, Kaustubh, Rohini, Pradeepika, who helped shape and bring these stories to life, and Aditi, who has been the backbone of the team all through the way. And thank you to you wonderful audience for staying with us throughout the storytelling session. You can learn more about our fellows' other stories that will be displayed in an exhibition called Water and Us on the 29th of March at Bangalore International Center. I repeat, 29th of March at Bangalore International Center. If you're in the city, all of you are welcome to join. Come along and meet the fellows in person, ask your questions, and have your discussions. On that note, this session comes to an end. Thank you all again for joining us today. Stay tuned to India Water Portal for another season of fellowship will soon be coming. Thank you and have a great weekend.